कोरोना वायरस खांसने, छींकने और सांस छोड़ते समय निकलने वाली इन्फेक्शन की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने या इन्फेक्शन वाली वस्तुएं जैसे दरवाजे के हैंडल और लिफ्ट के बटन छूने से ये इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाने से इसके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे सार्वजनिक परिवहन, मॉल एवं थिएटर में ना जाकर इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। इसके फैलाव को रोकने के लिए एक दूसरे से बात करते समय उचित दूरी रखना जरूरी है। भारत सरकार मॉल, स्कूल एवं कॉलेज को बंद करके, कार्यक्रमों को स्थगित करके और कॉरपोरेट घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रथा का उपयोग करके भीड़-भाड़ को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन उपायों का पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण, घर पर रहें और यदि संभव हो तो भीड़-भाड़ से बचने के लिए घर से ही काम करें। मीटिंग करने के बजाय टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करें। गपशप या पार्टी के लिए ग्रुप में इकट्ठे ना हो। यदि घर पर खाना मंगा रहे हैं तो डिलीवरी मैन को खाने का सामान अपने दरवाजे पर ही रखने के लिए कहें। गैर जरूरी यात्रा मत करें। जब भी आप जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं या बैंक जाते हैं, वहां पर किसी अन्य व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। किसी से ना हाथ मिलाएं और ना ही गले लगे, केवल नमस्ते करें। यदि आपने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की है तो आपको एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करवाकर बाहर आना है और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले 14 दिनों के लिए स्वयं को घर में एकांतवास में रखना है। यदि आप पिछले 14 दिनों में किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि कुछ लक्षण जैसे खांसी, जुकाम या बुखार है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान और भीड़-भाड़ में जाने से बचें। लिफ्ट इस्तेमाल करते समय क्षमता के अनुसार एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। आइए इस महामारी को रोकने के लिए सामाजिक दूरी की आदत बनाएं और इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में मदद करें। जानकारी पुलिस पनि जान्छ केही बाटो तल बस्दा यस्तो डर लाग्छ त्यो बाटो।
Lain lagi lah. As the number of cases of coronavirus or COVID-19 disease increases day by day, we're aggressively moving towards the community transmission stage of the disease. In the days ahead, we expect the number of cases, the number of affected lives, and the communities impacted to increase significantly. While the spread of COVID-19 can no longer be stopped, we can definitely slow it down. And we have to do it now. Individuals with COVID-19 will develop common symptoms like fever, cough, sore throat, aches and pains. But the severity of these symptoms will vary. Some individuals might not show the symptoms at all, but still be active carriers. In fact, in 80% of the cases, people will only experience a mild version of the disease, while another 20% will have severe symptoms leading to hospitalization. Only 2% of the overall infected population is potentially going to deal with fatal consequences. By comparison, SARS had 15% fatality rate and Ebola 50%. This virus appears to be significantly more contagious than even the flu virus. The virus is significantly more resilient and can spread through coughing or sneezing or through an infected surface, which you might touch and subsequently touch your eyes, face or nose. It will take 5 to 6 days before you start to feel sick and the symptoms start to show. But you're already starting to spread it to other people even if you're feeling healthy. And that's why the virus has been able to spread across the globe so aggressively. And the reason the WHO has finally decided to call it a pandemic. Having said that, what happens next is up to each of us. As countries take responsibility for controlling and slowing down the spread of the disease, we can play an active role in this. A normally healthy person decides to go to their office and catches the infection there. As they don't feel sick right away, they decide to go out for a movie that evening or maybe dinner. There they unknowingly infect 5 or 10 more people. Now these 10 people, all asymptomatic, go about their daily routines, visiting temples, shopping, playing with their families, and maybe working. Within a few days, over 1,000 people are now carriers of the disease. 20% of them will develop severe symptoms and will need to go to the hospital. When everyone becomes sick at once, there's a significant load on the health systems and things start to break. In no time, the hospitals are now full and have to start turning patients away. A lot of those people will subsequently die. The people who can do the most to reduce these unnecessary deaths are all of us. To slow the virus, we need to act as if we already have it. By avoiding crowded places, public transportation, movie halls, schools and offices, we decrease the chance of us getting the disease and subsequently spreading it. This is called social distancing. By doing this, we slow the spread of the virus and ensure that hospitals are able to accommodate severe cases while managing their regular workflow. But this can only happen if all of us do our part, and that's why experts and epidemiologists are talking about flattening the curve through social distancing.
and staying at home as much as possible. The decision we're all faced is not if we'll get the coronavirus, but when. And the difference could mean life or death. Let's do the right thing. कोरोना वायरस खांसने, छींकने और सांस छोड़ते समय निकलने वाली इन्फेक्शन की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने या इन्फेक्शन वाली वस्तुएं जैसे दरवाजे के हैंडल और लिफ्ट के बटन छूने से ये इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाने से इसके इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे सार्वजनिक परिवहन, मॉल एवं थिएटर में ना जाकर इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। इसके फैलाव को रोकने के लिए एक दूसरे से बात करते समय उचित दूरी रखना जरूरी है। भारत सरकार मॉल, स्कूल एवं कॉलेज को बंद करके, कार्यक्रमों को स्थगित करके और कॉरपोरेट घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रथा का उपयोग करके भीड़ भाड़ को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन उपायों का पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण, घर पर रहें और यदि संभव हो तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए घर से ही काम करें। मीटिंग करने के बजाय टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करें। गपशप या पार्टी के लिए ग्रुप में इकट्ठे ना हो। यदि घर पर खाना मंगा रहे हैं तो डिलीवरी मैन को खाने का सामान अपने दरवाजे पर ही रखने के लिए कहें। गैर जरूरी यात्रा मत करें। जब भी आप जरूरी सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं या बैंक जाते हैं, वहां पर किसी अन्य व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। किसी से ना हाथ मिलाएं और ना ही गले लगे, केवल नमस्ते करें। यदि आपने पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा की है तो आपको एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करवाकर बाहर आना है और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले 14 दिनों के लिए स्वयं को घर में एकांतवास में रखना है। यदि आप पिछले 14 दिनों में किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि कुछ लक्षण जैसे खांसी, जुकाम या बुखार है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। लिफ्ट इस्तेमाल करते समय क्षमता के अनुसार एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। आइए इस महामारी को रोकने के लिए सामाजिक दूरी की आदत बनाएं और इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में मदद करें।